Now let's start the Android for the first time. So when you start the Android for the very first time, let me hide the floating panels. Okay. For the very first time when you start Android Studio, this window will pop up. इस विंडो भाई का मतलब ये है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो. हमने कहा यार नया प्रोजेक्ट बनाना है. लेट्स क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आ गई. अब इस न्यू प्रोजेक्ट की विंडो के अंदर चार चीजें पूछ रहा है कि आपने फोन के लिए या टैबलेट के लिए एप्लीकेशन बनानी है. वेयर ओएस मींस स्मार्ट वॉचेस के लिए बनानी है भाई. एंड्रॉइड टीवी के लिए एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, या ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों के अंदर आजकल डेक आ रहे हैं वो भी एंड्रॉइड सिस्टम है, उसके लिए एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो. तो हमने कहा भाई बाकी चीजें तो बाद के बाद, पहले हम फोन पे बना लें. हमारे लिए फिलहाल यही बड़ी बड़ी अचीवमेंट होगी. तो जब हम फोन सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि अच्छा भाई फोन पे आप क्या बनाना चाह रहे हो, किस तरह की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो. तो ये सर्टेन प्रीसेट्स बने बनाए मौजूद हैं. बेसिक एक्टिविटी जिसमें बेसिक एक दो स्क्रीन होंगी, नेविगेशन बार जिसमें नीचे नेविगेशन बार है, एम्प्टी जिसमें बिल्कुल एम्प्टी फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, 99% हम यहां से स्टार्ट करते हैं. इसी तरह से इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल फाइंड वेरियस डिफरेंट टाइप्स की लॉगिन स्क्रीन है, प्राइमरी डिटेल फ्लो डायग्राम है, या नेविगेशन ड्रॉअर है जिसपे लेफ्ट से मेन्यू खुल जाता होगा. तो कुछ चीजें इस भाई ने पहले से बना के रखी हुई है. ठीक है, हमारा काम है वी विल एक्सप्लोर देम एज वी गो अलोंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो फॉर नाउ व्हाट वी से that let's begin with empty activity. I clicked on next. Now remember this is the first time I'm starting Android, assumingly. ठीक है, I have started multiple times, but I will explain the things that this is the first time, and subsequently every time you start Android Studio you are going to get the same screen. See, so what we do is when you first time come here it will ask you to give me the application name. Now this application name will be the name that is displayed on your mobile phone. So the first time you start application, or when you give your name, it will be the same name that will be displayed on your apps when it's installed in your Android. So be careful to give it a proper name. In my case, I'm giving BS software underscore evening underscore part 3 underscore data entry. Okay. Or for example, let's just use login for now for simple sake. Okay, so I'm creating a very simple application, basic starting first time login screen. Next, package name. Now this will be the name that will be displayed on the mobile phone once my application is installed. तो थोड़ा सा केयरफुल रखे. ओके, उसके बाद पैकेज नेम. नाउ बाय डिफॉल्ट जो आपने नाम यहाँ पे दिया है वही पैकेज नेम इसने यहाँ पे दे दिया. इस नाम के अंदर स्पेस नहीं दी जाती. दैट्स अनदर रूल. डू नॉट गिव स्पेसेस इन द नेम राइट नाउ. The same name will be given as your package name. Here it also added something called example. Now at this moment we can give example, no worries, but once you install this application on Google Play Store or deploy your application on a Google Play Store, this will create problem, because every application in the world will start with example. It creates problem. So Google will say that your packages are not named correctly, you will have to rename it. So what we do is we name it as, what should I name it? BS software. BS software EVE. So this becomes my package name. Okay, so it's always a good practice to change your package name from example to certain other name, so that, or usually name of your application or the main primary aspect of your application, so that once you complete your package and you want to deploy it on Android Studio तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो. वरना जब डिप्लॉय करने जाएंगे Android Studio पे तो वहां पे एरर दे देगा कि this application cannot be installed on Android Studio, sorry, on Android Play Store. When you deploy your application on Play Store, we will be talking about that. Application बन गई, अब उसको डिप्लॉय करना है, ये हम वो भी करेंगे. गूगल डेवलपर और प्ले स्टोर का अकाउंट बनाएंगे, वहां पे डिप्लॉय करेंगे ताकि दुनिया हमारी एप्लीकेशन इस्तेमाल करे. उसके लिए लाजमी कुछ चीजें हैं. एप्लीकेशन का नाम करेक्ट होना लाजमी है. सो अभी से आदत डाल देंगे भाई, एग्जाम्पल पे इस्तेमाल नहीं करना, अपना नाम दे रहा है ऐसे. ठीक, अब लोकेशन कहाँ पे इस्तेमाल करने, सेव करने जा रहे हो, कोई भी एक फोल्डर बनाओ, वहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करो. मैं यूजुअली सी पे नहीं डी पे देता हूं, तो मैंने डी में एंड्रॉइड क्लास का एक फोल्डर बना दिया, यहाँ पे सारी एप्लीकेशन चली गई. लैंग्वेज तुसी कौन सी यूज करने जा रहे हो, हमने कहा जावा करनी हमने, because we have already studied Java, the basic structure of Java is already familiar with me. Okay, so I will say use Java for that purpose. You can use Kotlin if you know Kotlin. तो लेकिन because हमने Kotlin नहीं पढ़ी हुई, तो मुझे फिर Kotlin के भी सारा syntax, structure, loops, variables, conditions, if else, बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है. हरू का गंद हो जाएगा. लेकिन क्योंकि हमने जावा पढ़ी हुई है तो भाईजान हमने जावा को इस्तेमाल ही करना है. उसके बाद आ जाते हैं एसडी के वर्जन. मिनिमम एसडी के वर्जन आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो.
ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इवन फॉर द फर्स्ट टाइम एवरी एप्लीकेशन आप बनाने जाओगे, ये सारी 4 चीजें सेम आपने देनी है। 4 चीजें आपसे पूछेगा, इसी पैटर्न पे देनी है। एसडीके क्या हुआ? एसडीके बेसिकली हुआ कि आप जब अपना सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें मिनिमम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एंड्रॉइड की कौन से वर्जन वाली मैंने इंस्टॉल करनी है, रिक्वायर रखनी है, जिसके ऊपर आपने काम करना है। So we say, if I, for example, go at the bottom and I say I want to use the latest Android Pie version, here we go. See, you can do that, but it will give you that, okay, आप इस्तेमाल कर रहे हो, but approximately only 40% of devices are currently in the world applicable using Android 9. बाकी 60% पे your application will not run. This is one of the most essential and critical part, that if you want to deploy an application for a company, for a product, for anything, remember the older devices, the private devices, Xiaomi हुआ, Oppo हुआ, इसी तरह से जो Nokia हुए, इनके सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट नहीं होते। क्यू मोबाइल हुए हमारे पास कॉमनली है, वो उनके एप्लीकेशन वंस जो आ गया कंपनी से वो अपडेट नहीं होता, तो पुराने सिस्टम्स पे आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। गूगल के हिसाब से सिर्फ 40% दुनिया की एप्लीकेशंस आपका सिस्टम यूज करेंगी, मतलब आपने आधी मार्केट खो दी, तो फायदा ही कुछ नहीं हुआ। अगर मैं पीछे पुराने, अगर ये मैं लेटेस्ट पे आ जाऊं 31 एंड्रॉइड 21 पे, तो सिर्फ लेस देन 1% दुनिया में डिवाइसेस है, मतलब अभी तो कोई भी नहीं है, तो इस पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो जज्बाती होकर लेटेस्ट पे मत जाना। मेरा अपना प्रेफरेंस रहती है एंड्रॉइड 5 लॉलीपॉप वर्जन। इसके बाद एक सब्सटेंशियल चेंज आया था एंड्रॉइड के अंदर, मैंने कहा यार मिनिमम मुझे 5 वाला चाहिए, तो उस पर उसने कहा कि 94% डिवाइसेस आपकी इस्तेमाल करेंगी। मैंने कहा मुझे ये रेशो काबिल कबूल है, तो मैंने इसको इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट किया। सो वी ऑलवेज रेकमेंड दैट यू यूज अ ओल्डर वर्जन। किटकैट भी ठीक है, लेकिन एंड्रॉइड 5 इज समथिंग दैट इज स्टैंडर्ड। उसके बाद एक्चुअली एंड्रॉइड में सब्सटेंशियल चेंज आई थी, तो मैंने 5 को यूज करते हुए नेक्स्ट पे किया। ठीक है, तो ये सेटिंग्स याद रखो। नेक्स्ट टाइम न्यू प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे, आपने नाम तब्दील करना है, एग्जाम्पल की जगह पे अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है, मेक इट अ हैबिट। देन लोकेशन वेर एवर यू वांट टू सेव, जावा एंड देन एपीके मैंने 5 रखी। ओके, क्लिक ऑन फिनिश। Okay, now as soon as I click finish, you will note that my system is working. Okay, it will launch my studio and now it goes into preparing Android Studio. If you are launching for the very first time, ये स्क्रीन पास करने के बाद अगेन आपको अब 3 से 5 से 10 मिनट तक आपने चुप करके बैठना है, एंड्रॉइड भाई को देखते रहना है, इतनी पेशेंस डालनी है। बिकॉज व्हेन यू इंस्टॉल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, again Android Studio will go on the internet, it will make sure that it has installed SDK 5 Lollipop version जो है वो उसके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए, वो नेट से कनेक्ट करके डाउनलोड करेगा। इसके अलावा ग्रेडल की फाइल्स हैं वो अलग से डाउनलोड करेगा, और 2-3 चीजें करता रहेगा। तो कम से कम 5 से 10 मिनट आराम से एंड्रॉइड स्टूडियो पहली दफा लॉन्च होने में लेगा। सो यू नीड टू बी पेशेंट विद एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड अगेन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस यू अगेन नीड इंटरनेट। ये नहीं कि once I have installed it, sir, now it's still not running. I have installed it, new project की window भी आ गई, but I have Android Studio still not running. The main purpose for that, or the main reason for that, is that even for the first time when you install it and you run the Windows Android Studio, again वो मेरा भाई इंटरनेट पे जाएगा, वो बोलेगा भाईजान मुझे और फाइलें चाहिए। So you do need internet constantly. Again, if you see, still I think 2 minutes pass हो चुके होंगे। This is still building few settings. मेरे पास अभी भी यहाँ पे कुछ खास चीजें नजर नहीं आ रही, ये अभी भी लोडिंग में लगा हुआ है, और हालांकि मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आई हैव डेवलप्ड few applications on it, still it is loading, it is taking few minutes. I'm using Android considerably good PC. ठीक है, मैंने कहा I have a 16 GB RAM, I have Core i7 with latest generations, फिर भी और SSD के साथ, तो इट्स स्टिल टेकिंग सम टाइम। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए आपको पेशेंस चाहिए, ये नहीं कि सर मेरा लैपटॉप स्लो है, इट माइट टेक फ्यू मिनट्स एक्स्ट्रा बट चल जाएगा, शर्त ये कि इंटरनेट होनी चाहिए। और अब जाके उसने मुझे, मैं अपना एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट का फोल्डर दिया, पहली दफा मुझे आराम से 5 से 6 मिनट वेट करने पड़े थे, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड या लैपटॉप स्पीड, एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा स्लो जरूर चलेगा। सो बी पेशेंट विद इट। मुझे टिप नहीं चाहिए भाई, मैं खुद ही सब चीजें समझने वाले में हूं। तो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो पहली दफा चलकर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेडल वो इंस्टॉल कर रहा था, जो ग्रेडल यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्रेडल
उसको चाहिए बेसिकली जो आपको एपीके बना के देता है, तो कुछ उसकी फाइलें हैं वो डाउनलोड करता होगा. सो once it is there, you see your main activity cursor blinking, you see your project window files. That means कि अब आप काम करने की पोजीशन में आ चुके हो. फिर भी keep an eye on at the bottom here. ठीक है, यहां पे आपको बता रहा होगा स्टेटस, इफ इट इज स्टिल डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग और बिल्डिंग और इंपोर्टिंग सर्टेन सेटिंग्स. सो यू माइट रिकमेंडेड के 2-3 सेकंड्स मिनट्स के लिए और वेट कर लो. पहली दफा में टाइम मैंने कहा ज्यादा लेता है, नेक्स्ट टाइम उसने 2 से 3 मिनट लेगा, आ जाएगा. लेकिन 2 से 3 मिनट फिर भी लेगा, तो बी पेशेंट विद इट. नाउ वंस वी स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, दिस इज द फर्स्ट यूजर इंटरफेस लुक दैट वी गेट. द फर्स्ट थिंग यू सी इज योर प्रोजेक्ट विंडो. Here it tells you your app. Within app there's a manifest file, there's a Java file because we are using Java, there's a resource folder. Within Java file there are 2-3 things that you need to understand. That within Java files you see that com.bssoftware.software your project package name. Within package name there is a file called main activity which is being displayed here. ये आपकी Java file हो गई. Then if you go inside the res resource folder, इसको हम कहते हैं, इसके अंदर भाईजान आ गए, तो यहाँ पे ड्रॉबल एक फोल्डर है, यहाँ पे लेआउट एक फोल्डर है. ठीक है, इसके अंदर एक और फाइल पड़ी है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, विच इज दिस पर्टिकुलर फाइल. इफ आई स्क्वीज इट, open this activity file, once I click on this activity file, now I get a completely different interface. If I go to main activity, अलग इंटरफेस, सिर्फ कोड आ गया. यहां पर आ गए तो पूरा इंटरफेस आ गया. मैं इन दोनों को भी एक्सप्लेन करता हूं, इन दोनों फाइल्स को, स्ट्रक्चर को और एक्सप्लेन करता हूं. टॉप पे नेविगेशन है, फाइल मेन्यू सिस्टम्स. नीचे आपके फोल्डर स्ट्रक्चर का एक लेआउट बता रहा है कि इस वक्त जो फाइल आप देख रहे हो वो आपके किस पैकेज में से कहां से आ रही है. वेरी हेल्पफुल. आगे जब हम मल्टीपल फाइल्स पे काम करेंगे तो पता चल जाता है कहां से क्या फाइल जा रही है. एक्सएमएल पे चले गए तो ये देखो फोल्डर स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया कि आप बीएस सॉफ्टवेयर के ऐप के एसआरसी के मेन के जावा के कॉम के बीएस के फलाने फोल्डर में. ठीक है, वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर. एज आई सेड, लेटर ऑन फॉर एडवांस डेवलपमेंट वी विल बी यूजिंग इट फॉर दीज 2 फाइल्स. ठीक है, बाकी यहाँ पे कंपाइलिंग के बटन्स हैं, ये एवीडी जो हम सिमुलेटर यूज करेंगे उसके लिंक्स हैं, ये यहां से कंपाइल के, और ये कुछ कोड विंडोज के बटन हैं. वी विल बी यूजिंग देम एज वी गो अलोंग. मैंने वही कहा कि मैं प्रोजेक्ट्स बनाता रहूंगा, जो जो चीजें आती रहेंगी हम उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे. अब आ जाते हैं इन 2 भाई फाइलों के ऊपर. अभी रिमेंबर फॉर हमने बेसिक एक्टिविटी पे क्लिक किया था, बेसिक ब्लैंक एक्टिविटी के ऊपर. ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक ब्लैंक एक्टिविटी पे क्लिक किया था तो मुझे बेसिक एक्टिविटी यहां पे दिखाई गई है. अब जो दिखाई गई है वो 2 चीजें, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा. एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, मेन एक्टिविटी डॉट जावा. एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, मेन एक्टिविटी डॉट जावा. 2 फाइलें हजरत ने हमें बना के दी. 2 files have been created for us. The XML file is used for designing your mobile app user interface. The XML file main activity.xml, activity.main XML. This file, which resides inside the resource folder, inside the layout activity main.xml, this file is primarily responsible for designing your user interface of your app. Main activity.java is inside the Java folder, inside your package BS Software Part 3 login, main activity.java. This is used for creating the backend Java code. तो 2 फाइल्स आई, एक में हम डिजाइन कर रहे हैं लेआउट जो यूजर ऐप देखेगा, एक पे उसकी बैकएंड की कोडिंग जो जावा के थ्रू होगी, जिसमें उसकी लॉजिक रखी जाएगी. तो ऑलरेडी आपको 2 फाइलें दी गई हैं. दोनों फाइलों का पर्पस अगेन, XML के थ्रू हम एंड्रॉइड ऐप की यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं और जावा के थ्रू हम भाईजान का कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जब यूजर इंटरफेस पे आ जाएंगे तो ये रहे हमारे पास कॉमन यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स. ये ऑलरेडी भाईजान ने बना के दे दिए भाई. उसने कहा यार ये मौजूद हैं, यूज देम. हाउ वी यूज देम? वी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक, अभी मैं इसको फिलहाल बंद करता हूं. मैं आ गया टेक्स्ट के ऊपर, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो टेक्स्ट बन गया. ओके, लेट मी जूम इनटू इट.
ये मेरे पास टेक्स्ट बन गया। मुझे बटन चाहिए, मैं बटन में आया, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आ जाओ, खुल जा सिम सिम, आ जा मेरे भाई, ऐसा नहीं करो। ओके, हियर वी गो, बटन आ गया। इसी तरह से जो भी कंपोनेंट मुझे चाहिए, विजेट्स चाहिए, कैलेंडर्स चाहिए, कंट्रोलर्स चाहिए, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट जो कि हम प्राइमरीली यूज करते हैं, प्री कैलकुलेटेड, प्री क्रिएटेड फॉर अस। तो डिजाइन करना ये है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें रखनी है बस। उसके बैकएंड पे उसका जो एक्सएमएल कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। वो कोड देखने के लिए नाउ यू विल सी दिस विंडो इज हियर। डिजाइन व्यू में स्प्लिट व्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन व्यू आ गया, ये कोड व्यू आ गया। कोड पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ मुझे कोड दिखा रहा है कि आपका एंड्रॉइड था, उस पर आपने एक टेक्स्ट व्यू बनाया, दूसरा टेक्स्ट व्यू बनाया, तीसरा बटन बनाया। मैं वापस डिजाइन पे क्लिक किया तो ये तीनों चीजें मेरे पास वापस आ गई। दो टेक्स्ट फील्ड हमने बनाए, एक, दो और तीसरा बटन। ठीक, तो एक्सएमएल के थ्रू हम डिजाइनिंग करते हैं। हम डिजाइनिंग इंटरैक्टिव ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है तो कोड कौन करेगा भाई? तो हमने कहा कोड के थ्रू करेंगे। Then once you do the coding, it will automatically create the component and write the backend XML for you. आपका XML वो लिख देगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अब जो जावा में हम कंट्रोल देते हैं कि जब मैं हजरत बटन पे क्लिक करूं, टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करूं, या जो मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहा हूं, मुझे नेक्स्ट विंडो पे जाना है, वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो वो जो इंटरेक्शन है वो हम जावा के थ्रू यहां पे देते हैं। ठीक है, वो हम जावा के थ्रू यहां पे देते हैं। तो पहला काम हमारा होता है डिजाइन करना, दूसरा काम होता है जावा के थ्रू कंट्रोल देना। जब हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन कंपोनेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उसको हमने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया, ड्रॉप किया। उसके बाद इसमें जो हम यहाँ पे एक चीज गिवन है कंपोनेंट ट्री का, रिमेंबर ऑल दीज आर नोन इन एंड्रॉइड एज कंपोनेंट्स। टेक्स्ट फील्ड्स, बटन्स, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज कंपोनेंट्स। बटन्स हुए, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज कंपोनेंट्स। ले विजेट्स कंपोनेंट्स, किस टाइप का कंपोनेंट है अलग बात है, ये सब कंपोनेंट कहलाते हैं। इसीलिए ये कंपोनेंट ट्री में आपको बताता है कि यार इसको मैंने स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट ट्री इज लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट। किस चीज के अंदर क्या रखा है, किस चीज के अंदर क्या रखा है, किस मेन्यू के अंदर क्या है, पूरा स्ट्रक्चर हमें नजर आ जाता है। ठीक है, यहां पर आ जाए तो दो है, एक ब्लू कलर का, एक येलो व्हाइट कलर के, दो व्यूज नजर आ रहे हैं। ये हमारा डिजाइन व्यू है, ये हमारा ब्लूप्रिंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल किसी हद तक जो उसका फाइनल आउटपुट है वो नजर आ रहा है, यहाँ पे उसका ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, कि कितने कंपोनेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज क्या किए हुए। सो वी यूज दिस टू डिजाइन एंड लेआउट एंड स्ट्रक्चरिंग, और उसकी फ्रंट व्यू हमें यहाँ पे दिखा रहा होता है। दिस इज एक्सट्रीमली हैंडी व्हेन वी स्टार्ट टू डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। वी यूज ब्लूप्रिंट फॉर डिजाइनिंग एंड लेआउटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और यहाँ पे फ्रंट व्यू आ रहा होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स खुल जाते हैं, एट्रीब्यूट विंडो। ठीक है, मैंने मिनिमाइज पहले कर दिया था, ये एट्रीब्यूट आ गए। तो जो भी कंपोनेंट आप उठाओगे खुल जा सेम सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बटन सेलेक्ट किया हुआ है, बटन का यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ गए, तो उसकी जो सेटिंग्स हैं, पैरामीटर्स हैं, हम डायरेक्टली यहीं से दे रहे होते हैं। समझ में आई? तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द बेसिक यूजर इंटरफेस वेरी कॉन्सेप्टली। We have a project window. We work with the project files from this particular window. We have within activity panel the palette, जहां पे components पड़े हैं, component tree जहां पे उसका structural layout आ जाता है, फिर डिजाइन व्यू आ जाता है जहां पे हम उसके कंपोनेंट्स को फिजिकली डिजाइन करते हैं। इसमें एक आउटपुट, एक ब्लूप्रिंट विंडो है, एट्रीब्यूट एडिटर खुल जाता है। यहीं पे हमारे पास ऊपर एक बटन दिए हुए डिजाइन का, स्प्लिट व्यू का, जहां पे कोड आ जाता है, सिर्फ कोड करूंगा तो सिर्फ कोड व्यू आ जाता है। ये एक्टिविटी एक्सएमएल के अंदर है। इफ यू गो इनसाइड द मेन एक्टिविटी, मेन्यू चेंज हो गया कंप्लीटली, इसमें सिर्फ कोडिंग है भाई, बैकएंड की कोडिंग कोडिंग है। ठीक है, so when we work with Android Studio, these are the two things that you need to be aware of. Whether I'm working in initially in activity and we design multiple activities and multiple views, और वो बाद में आते रहेंगे कि हम एक व्यू से दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, बट फिलहाल दिस इज व्हाट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इस पे और काम करना कि यार हम इस व्यूज को कैसे कंट्रोल करें, हम इसकी इंटरफेसिंग को कैसे कंट्रोल करें, हम इसके लेआउट को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आई? ओके,
So if okay, so hopefully यहाँ तक थोड़ा बहुत इंटरफेस के हवाले से क्लियर होगा. Now what we need to do is we need to go and let's develop application. Like I've said that I will try to work in terms of application developments. हम हर एग्जाम्पल बेसिकली एप्लीकेशन डेवलप बनाते जाएंगे, छोटी छोटी एप्लीकेशंस, और उसके ऊपर हम काम करेंगे, और उसके साथ जितना भी कोड इन्वॉल्व हो रहा है हम वो डायरेक्ट सीखते जाएंगे. मैं बिल्कुल बेसिक्स, लूप्स, लॉजिक्स, कंडीशंस इस पे नहीं जाऊंगा. तो ये बेसिक लेक्चर थोड़ा सा इंटरफेस को समझना लाजमी है. अभी भी इसमें 10 चीजें जो हमने डिस्कस नहीं की, ये बटन हमने डिस्कस नहीं किए, ये बटन डिस्कस नहीं किए. लाइक आई सेड, हम जैसे से इस्तेमाल करते जाएंगे इनका इस्तेमाल होता जाएगा और फिर उसी के ऊपर ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है. सो इन नेक्स्ट क्लास we will continue and we will develop an application.